stereochemistry in broadly in two parts. Number one, which is static stereochemistry. The other one is a dynamic stereochemistry. Okay, by static stereochemistry, maybe your molecule is rigid. You are just analyzing the molecule. You are finding the elements of symmetry. You are just finding it. Your molecule is R or S whatsoever. Means because your molecule is rigid, you are just taking that molecule as such, and then you are just you are studying that molecule. But please mind it. So the models which I am just showing you, so these models are dead models. Okay, they do not have any life. But your molecules, they have life in them. Okay, so they have life in them. For example, if you just throw light on them, they will respond. Okay, so when you will just start in the spectroscopy, you would have realized that these molecules are not dead molecules. They also have life. But to interact with them, so you have to develop a new type of language. So that what you call as the spectroscopy. Okay, so those things maybe we will discuss in your second semester. I think so. Maybe you have the stereochemistry pertaining to organic chemistry. So you will just be realizing all these things. These molecules, for example, with the models which I am showing you, you please don't assume that the molecule, this is exactly the methane molecule will be like this. Okay, so you can simply say, you just imagine how small that molecule would be. So it is just to build some conceptual information in our mind. Okay, but the real molecule, it will not be static. So all the time there will be so many types of motions going on in those molecules. So for our understanding, so we just have to take one picture and then we have to analyze it. Then, for example, if I understand this better, then I can think I can understand this better, I can understand this better, I can in the same molecule I can just study in so many ways. I can start looking at this molecule from this bond. Okay, I can start looking this molecule from this from this axis. I can start looking this from the plane of symmetry point of view. So it means, so these molecules, so all these things, it is your static. So we assume that they are just taking one rigid shape. So that is our assumption that this molecule is static, but in reality it is not static. All the time some type of dynamism will be there. You know, if something is static, that would be that. Okay, so for example, in our body also, if everything becomes static, if there is no motion, no metabolism, nothing else, so you know what is going to happen. Same is the case with the molecules. Okay, what I am showing you in the models is these are these are very big models just to build up some concept in your mind. Okay, but please, you keep this thing in your mind that the real molecule, they are not, these are the models, they are not the real molecules. Okay, those molecules we cannot see even with the eyes or even with very powerful microscopes. Okay, so and then this is after lot of observation. So these things have come into existence. Okay, so basically, in the static stereochemistry, so we have studied so much. Okay, so so we assume the molecule is having a fixed conformation, then we're just moving. The moment we just moved on to your cyclobutane, so you have just seen around that bond that rotation was possible. So you can just got anti-conformation, you can get got conformation. In between anti and got, you can just think of infinite number of conformations. Okay, so for example, when you just see this rotation, for example, around this bond, so we are, this is butane 1 2 3 4. Okay, around this bond, so you are seeing, so these are also known as rotamers. Rotamer means because these changes you are finding by rotating this thing. So you are rotating this and then those you are just finding. So for example, you have seen in cyclohexane. Okay, so one chair changing to the other chair, and then this shift is so fast. This shift is so fast. If you just want to block that thing, then you have to just freeze it up to a temperature maybe minus 200 degrees. You just imagine कि at room temperature, this flipping is so fast, we cannot stop it. Okay, so then we have to just reduce the temperature to minus 200 or maybe less than that. Only then you will be able to find one cyclohexane in that frozen mode. So otherwise, these molecules, they are in motion all the time. So if you just want to freeze them, you have to lower the temperature.
You got it? So it means, so though basically what we are just trying to do is कि we will just see कि जो reactivity and conformations, they are integral part of each other. Okay, so for example, so you will just realize, so but this मतलब let us first try to take this addition reaction, and then uh, we will just try to before addition. So let me say, I think why not we discuss elimination reaction, and then we will just get back to this. ठीक है? Okay, in the elimination reaction, so किसने पढ़ाई है आपको पास इस सेमेस्टर में? तो आपको पढ़ी होगी ना आपने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने? एलिमिनेशन इस पढ़ा ना आपने, तो आपको पता होगा एंटी एलिमिनेशंस क्या हैं, सिन एलिमिनेशंस क्या हैं, और किन कंडीशंस में आपके पास मॉलिक्यूल में एंटी एलिमिनेशन होती है, किन कंडीशंस में आपके पास सिन होती है। एंड इन बोथ द केस आपके पास 1-2 पोजीशन होती है, एक ग्रुप आपका 1 पोजीशन से निकलता है, एक ग्रुप आपका 2 पोजीशन से निकलता है। सो मोस्टली जो हम आपके पास यहां से डिस्कस करेंगे, दोज वुड बी 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जिसको आप कहते हैं, कि एक आपके पास एक अल्फा से निकलेगा लिविंग ग्रुप, एक दूसरा आपके पास बीटा से निकलेगा, तो आपके पास वो निकल के आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, सो इफ यू, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि एंटी एलिमिनेशन क्या होती है, सिन एलिमिनेशन, वो किन कंडीशंस में आपके पास रिएक्शन सिन एलिमिनेशन होती है, किन कंडीशंस में एंटी एलिमिनेशन होती है। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होता है कि आपके पास दो डिफरेंट कार्बन से आपके पास दो एलिमेंट्स उसमें से निकलते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस एग्जांपल, जैसे हम इसको देख लें, इस एग्जांपल को देखें, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। सो फॉर एग्जांपल यू सी कि आपके पास ये वाला हमारे पास टिपिकल सा एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ब्यूटेन में क्या किया कि जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हमने एक 3 पोजीशन पे एक ड्यूटेरियम लगा दिया, हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम लगा दिया। जैसे आपके पास HBr निकलता है, ऐसे आपके पास DBr भी निकल जाएगा, ड्यूटेरियम ब्रोमाइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन कंडीशंस में आपके पास वो निकल जाएगा। लेकिन ये लेबलिंग से हमें क्या बेनिफिट होगा, आपको भी इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देखना, यहां पे आपके पास देखो कि यू प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो कि आपके पास जिन ग्रुप ने निकलना है उसको मैंने ये लेबल किया, जैसे ये ग्रुप लेबल, मान लो कि आप सोच लो एक Br है, एक आपके पास H है, मतलब इफ आई वी से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगर कई बार आपके पास डिहेलोजिनेशन भी होती है, आपके पास Br2 निकलता है मॉलिक्यूल में से, Cl2 निकलता है। ठीक, तो ये वाले हमारे पास है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, एक एटम से आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा या ड्यूटेरियम निकलेगा, दूसरे वाले एटम से आपके पास हेलोजन निकलेगा। दिस हेलोजन कुड बी ब्रोमीन, दिस कुड बी क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन प्राइमरली ये ब्रोमीन ही, ब्रोमोक्लोरो के बीच ही ये चीज को वो रखते हैं, क्योंकि आयोडाइड इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव। तो अब इसको जब आप इसको देखो कि अभी देखो कि मान लो कि अब आपके पहले आप थोड़ा मॉडल से समझने की कोशिश करो। अब हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसमें देखो कि फॉर एग्जांपल इसको हमने बोला है 3O आइसोमर, यू प्लस जस्ट सी कि यू कैन जस्ट रिकॉल कि आपके पास यहाँ पे 2 कायरल सेंटर्स हैं। अब यहाँ ड्यूटेरियम निकालने से ये होगा कि ये सेंटर भी आपके पास कायरल हो गया है। ठीक, 2 कायरल सेंटर्स हैं। अब आपके पास देखो कि आपके पास जो लाइक ग्रुप है, जैसे मिथाइल और मिथाइल, ये आपके पास एंटाई है, और यहाँ पे आपके पास एक पेयर बना लो आप ब्रोमो ड्यूटेरियम का। ओके, दे आर आल्सो एंटाई। इट मीन ये वाली आपके पास, क्योंकि आपने इसकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लिखी है इसमें से, तो आपको हमने बताया था कि जो आपने 2 पेयर बनाने हैं, इफ दोस पेयर्स इफ दे हैव द सेम रिलेशनशिप देन इट विल बी एरिथ्रो, अगर वो डिफरेंट होंगे देन दैट विल बी 3O। यू रिमेंबर दैट जब हमने एरिथ्रो 3O से डिस्कस किया था। ओके, तो आप उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लो, एंड देन दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू हैव द 3O आइसोमर्स। ठीक, अब आप देखो कि एंटाई एलिमिनेशन के लिए आपके पास क्या होता है कि जो 2 लिविंग ग्रुप है, दे हैव टू बी एंटाई पेरिप्लेनर। जैसे आप देखो ये आपके पास, ये वाला आपके पास, ये 1 2 3, ये आपके पास एक प्लेन है। ओके, एंड 1 2 3 दिस इज अनदर प्लेन। ये जो दोनों प्लेन है, अब आपके पास ये एक प्लेन जी हो गया, एक प्लेन जी हो गया। अब देखो इनके भी डायहेड्रल एंगल कितने हैं, 0 है। ठीक, तो उसके बाद है कि मान लो कि अब ये वाले जो आपके पास है, देन दिस इज योर एग्जैक्टली फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन, यू गॉट इट। तो उसके बाद क्या कि अब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं जिन्होंने लीव करना है, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। अगर आपकी सिन एलिमिनेशन होनी है,
सिन मतलब अगर होगी आपकी एलिमिनेशन बोथ सेम साइड से होगी, उस वक्त आपके पास ये दोनों ग्रुप्स हैं, दे हैव टू बी नियर टू ईच अदर। देन आपके पास अगर मॉलिक्यूल में ये वाली कन्फर्मेशन होगी, आपकी रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली होगी तो नहीं होगी, ये होगी नहीं, क्योंकि अगर आपने सिन एलिमिनेशन के लिए बोथ द लिविंग ग्रुप्स दे हैव टू बी क्लोजेस्ट पॉसिबल टू ईच अदर, वो उन्होंने सिन लेनी है आपके पास इस तरीके से कन्फर्मेशन। जैसे ही आएगी तो आपका बेस इसको पिक करेगा, यहां से ये निकल जाएगा आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन बेस्ड ऑन दैट डबल बॉन्ड आपके पास ये दिस मटेरियल इधर आपके पास सिस ओलिफिन बनेगी और ट्रांस ओलिफिन बनेगी, यही चीज इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है कि एंड देन दिस विल बिकम वेरी क्लियर जब आप इसके पास वो फिशर प्रोजेक्शन वो न्यूमैन लिखोगे। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, इट इज योर एंटी कन्फर्मेशन। अब आप देखो ये वाले जो ग्रुप है, जिन ग्रुप ने लीव करना है, दे आर एंटी टू ईच अदर, दे आर एंटी। अब ये देखो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, एक प्लेन जे वाला है, दूसरा प्लेन जे वाला है, ये वाला दो प्लेन है, एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये वाले जो ये वाला आपके पास एक एटम है, ये एक है, इन दोनों ने आपस में देखो जब यहां से निकलेगा यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा, आपके पास ओलिविन बनेगी। आप ओलिविन पता है आपको जो ट्रांस बनेगा प्रोडक्ट इसमें से। ठीक, इसमें क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल व्हाई आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, ताकि आपको ये न्यूमेन प्रोजेक्शन पूरी क्लियर कट दिख जाए। ठीक है ना, जो नियरर एटम है उसको आपका सेंटर से लेना है, जो आपके पास अवे है उसको आपने उसकी सर्कमफ्रेंस से लेना है। तो इसका मतलब जब आपके पास एंटी एलिमिनेशन ने होना है, वो देखो अगर इफ यू कन्फर्मेशन लाइक दिस, अब ये बोथ दीज आर गॉस कन्फर्मेशन, अब इसके साथ एंटी क्या है, इसके साथ एंटी ये वाला हाइड्रोजन है, आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से होगी तो ये दोनों सिन है तभी आपकी रिएक्शन नहीं होगी। अगर एलिमिनेशन एंटाई मोड से जाना होगा तो एंटाई मोड के लिए क्या है कि इस मॉलिक्यूल को, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज इन मोशन ऑल टाइम, देखो इक्विलिब्रियम है, ये मॉलिक्यूल घूम रहा है, कई किस्म की इसकी ये शेप चेंज कर रहा है, कि द मोमेंट इट ऐसे एंटाई एलिमिनेशन होगी इसकी, ये वाले काम आएगा, बेस इसमें पिक करेगा, इस यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, उसके बाद ये इसको आगे से किक होकर ये यहाँ से निकल जाएगा। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या है कि जो आपके पास लिविंग ग्रुप है, दे हैव टू बी ऑन द अपोजिट साइड्स, वो एंटी पेरिप्लेनर होना पड़ेगा। अगर वो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। मान लो कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल में इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन है कि लिविंग ग्रुप आपस में आपके पास एंटाई शेप नहीं ले सकते, देन योर दिस एलिमिनेशन वुड नॉट अकर। तो इसका मतलब है कि आपके पास उस एक पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन में वो जब आएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, तभी जो है कि आपके पास यू विल बी जस्ट बी एबल टू दैट रिएक्शन। अगर आपके पास अगर वो प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं आएगी आपके पास, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो वी विल जस्ट सी, जैसे आपको आगे हम बताते हैं। देखो तो जब आपके पास सिन होगी आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन देखो सेम मॉलिक्यूल में जब इसी में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना है तो देन यू विल गेट ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब यह है कि जो कन्फर्मेशन है, रिएक्टिविटी, दीज आर integral part of each other, they are very very important। जब आपने anti elimination की बात करो, the living group they have to be in anti elimination, if they are not able to adopt that conformation, your reaction will not occur। ठीक है, अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन फेवरेबल है, तो अगर आपके पास वो जो लिविंग ग्रुप है, इफ दे आर नॉट सिन टू ईच अदर, आपके पास रिएक्शन नहीं होगी। It means उसकी जो conformational is very very important because this molecule is changing its conformation because it is rotating। देखो ये यहाँ पे आपके पास इसके सिन आ गया, यहाँ जाके इसके गॉड चला गया, यहाँ जाके एंटाई हो गया, because this is the conformation एंटाई एलिमिनेशन के लिए ये फेवरेबल। ठीक है, अब देखो because this molecule is in equilibrium, it is in motion all the time। तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास अगर आप सोचो आपकी रिएक्शन इमीडिएटली क्यों नहीं हो जाती है, भाई आपने डाला एक सेकंड में रिएक्शन, ऐसे नहीं होती, रिएक्शन को टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिसमें वो रिएक्शन होगी, जो मॉलिक्यूल मे नॉट बी 100% प्रेजेंट इन दैट कन्फर्मेशन। तो आपके पास उस मॉलिक्यूल को चेंज कर रहे हैं, जैसे उसमें आता है आपकी रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा उसकी इक्विलिब्रियम बन जाता है, फिर जैसे बनता है वो रिएक्शन उसमें से हो जाती है। कि जो रिएक्शन इट वुड अकर ओनली एंड ओनली व्हेन दीस टू लिविंग ग्रुप दे आर एंटाई टू ईच अदर, इफ योर एलिमिनेशन इज टू अकर इन एंटाई मोड। ओके, तो उसके बाद देखो अगर ये आपके पास जिस और मस्जिद जिस फॉर्म में आपकी रिएक्शन नहीं होगी, अगर एंटाई मोड में होगी, ठीक है, ये तभी होगी जैसे इस कन्फर्मेशन में आएगा इमीडिएटली आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपकी रिएक्शन सिस मोड में होना है, फिर आपकी रिएक्शन जो है सिस में हो जाएगी। अब नो द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन सिस हो रही है या आपकी रिएक्शन ट्रांस मोड में हो रही है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है कि मतलब जो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने आपको यहां से आपसे डिस्कस कर दिया, दिस एग्जांपल, तो इसमें आपको
ये देखना। अब इसमें क्या है कि आपके पास हमने इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ये वाला आपके पास है मिथाइल एच ब्रोमीन। अब देखो ये वाला सारी जगह सेम है, मिथाइल एच ब्रोमीन, मिथाइल एच ब्रोमीन, ये सारी जगह सेम है ये वाला, ठीक है। खाली जो इसका पीछे वाला बॉन्ड है ना, हम उसको घुमा दें, ठीक है, बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम। जैसे हमने इसको मतलब आपने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया, ये आपके पास उठ के यहाँ पे आ गया। नहीं, इसको आपने 60 डिग्री से किया, जब आपके पास यहां से आनी आपने इसको मतलब इफ इट इज लाइक दिस, पहले आपके पास इस फॉर्म में था, फिर आपने क्या किया, आपने इसको रोटेट कर दिया बाय 60 डिग्री, आपने रोटेट कर दिया, आपके पास ये दोबारा एक्लिप्स आ गया। उसके बाद दोबारा आपने रोटेट कर दिया, आपके पास गॉच आ गया, ठीक है। ये आपके पास फुल स्टैगर्ड, दिस इज योर eclipsed again, we will call it partial eclipse, क्योंकि मिथाइल ड्यूटेरियम है, ये ब्रोमो मल्टी ग्रुप एक दूसरे को eclipse नहीं करते। उसके बाद जब दोबारा आपने 60 डिग्री पे किया, देखो ये आपके पास एक सेकंड रुक जाना यार इसमें, हाँ ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे ठीक है। फिर आप देखो ये वाला आपके पास जो जो आपके पास सेंटर वाले ना, ये पोजीशन सारी जगह फिक्स है, हम सारी जगह उसको फिक्स करे हुए। अब ये ड्यूटेरियम आपका यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे चला जाएगा, मिथाइल आपका पीछे चला जाएगा। ये आपके पास ये वाला आपके पास जो एच है, जो ये पीछे वाला है, वो क्या हो गया यार, इसमें से ये ड्यूटेरियम यहाँ पे आ गया, ये एच आपका जो है, इसमें क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ये मिथाइल है ना, अच्छा ये मिथाइल है, तो यहाँ पे हाँ ड्यूटेरियम कायदे से आपके पास इसको यहाँ पे जाना चाहिए ना अभी, क्योंकि इसमें अब इसमें मतलब जो अब देखो इसमें क्या किया हुआ है कि अब उन्होंने थोड़ा सा इसको जैसे HBr ले लिया, देन अगेन उन्होंने जो बीच की कॉन्फर्मेशन लिखी, उन्होंने इसको पूरा एक घुमा के लिख लिया ज्यादा, यानी इसको उन्होंने 180 डिग्री पे दे दिया, 180 डिग्री पे जाके ये आ गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब दोबारा जो है इसको थोड़ा सा उन्होंने मतलब बेसिकली अब इसमें क्या किया कोशिश करी गई हुई है कि उनका जो आपस का रिलेशनशिप है वो सेम ही है, ओके। तो आप इसको व्हेन यू विल जस्ट टर्न दिस, आपके पास ये निकल जाएगा, यू कैन जस्ट फाइंड कि कौन से एंगल पे आपने टर्न किया था यहाँ पे, ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। उसके बाद देखो जैसे ये इधर आपके पास जो है ड्यूटेरियम है, जो इससे निकल सर्कमफ्रेंस से, ये हाइड्रोजन सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे आपके पास मिथाइल सर्कमफ्रेंस से निकल रहा है। ये हर बार आपके पास ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और इनका आपस में रिलेशन यही रहेगा, ठीक है ना। आप अगर आप देखो कि अगर इनका आपस में रिलेशन देखो, ऑल द टाइम दे विल बी इनकी मतलब एक ही इनका आपस में रिलेशनशिप रहेगा। जैसे मान लो कि अगर आप देखो कि ये ड्यूटेरियम, अगर आप शुरू करो मिथाइल से ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन की तरफ रोटेट करना शुरू करो, ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप इसमें शुरू करो, आपके पास मिथाइल ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में पीछे वाले देखो, ये आपके पास वही है, या कहीं पे देखो वही है। तो आपके पास देखो हम इसको रोटेशन जब कर रहे हैं ना, यू कैन जस्ट रोटेट इट, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो आप इसको आगे भी, लेकिन डेलिबरेटली दीज 4 कन्फर्मेशंस आर टेकन, क्योंकि इससे हमें कंसेप्ट को क्लियर करना थोड़ा सा, ठीक। अब देखो एक आपके पास है कि एक आपके पास ये कन्फर्मेशन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। दूसरी कन्फर्मेशन जब आपने इसको 60 डिग्री पे आपने टर्न कर दिया, अब क्यों होगा, क्योंकि ये HBr दोनों आपस में पास हो गए, क्योंकि मतलब दिस इज जहां आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास एंटी एलिमिनेशन होगी, DBr निकलेगा, जहां पे आपके पास सिन एलिमिनेशन होगी, HBr निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन इफ यू जस्ट सी दिस, आपके पास हाइड्रोजन और ब्रोमो दे आर ऑन दी एंटी, इसमें आपके पास HBr निकलेगा, इसमें आपके पास क्या दी। अब यहाँ देखो आपके पास DBr निकलता है एंटाई मोड से, यहाँ DBr निकलता है आपके पास सिन मोड से, यहाँ HBr निकलता है आपके पास सिन मोड से, यहाँ HBr निकलता है आपके पास एंटाई मोड से। तो डेलिबरेटली इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखा हुआ है ताकि हमें एस्टेब्लिश करना है कि हमारे पास एक्चुअल क्या हो रहा है इसमें, ठीक। अब सबसे पहले आप इसमें देखो कि अब ये वाले इन मॉडल्स के बेसिस पे यू प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमने न्यूमेन लिखा हुआ। अभी क्या है कि आपके पास DBr इसमें से निकलेगा, तो अब आपके पास देखो कि यू जस्ट इमेजिन कि जो आपके पास इनिशियली योर मॉलिक्यूल वाज लाइक दिस, ठीक है, मॉलिक्यूल देखो आपके पास इस तरीके से था, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो जैसे आपके पास ये बन गया, आपके पास जो है देखो जैसे ये इसमें से निकल गया, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल से आपके पास आपके पास जो मॉलिक्यूल इस तरीके से आ गए, देखो स्टिल आप अगर आप इसको देखो, आपको न्यूमेन प्रोजेक्शन में भी ये दिखेगा कि आगे वाले 2 कार्बन जो सेंटर जा रहे हैं, पीछे वाले आपके पास उस तरीके से जा रहे हैं,
ठीक है। तो इसलिए ये वाली कॉन्फर्मेशन मैंने इसमें से डाल दी, जैसे इसमें डीबीआर निकलेगा। अब आप इसमें यू प्लीज नोट, ये वाला आपके मिथाइल और हाइड्रोजन है, ये सेंटर वाला, दिस इज द सेम एवरीवेयर, मिथाइल हाइड्रोजन, जैसे देखो कि निकल के सेम है हर जगह में, निकल वही है। अब आपने क्या देखना है कि अब आपके पास जैसे HBr निकल जाएगा, आपके पास यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। देखो ये जो आपके पास H और मिथाइल है, ये आपके पास पीछे वाले कार्बन का हिस्सा है, ये मिथाइल और H आपके पास फ्रंट वाले का है। तो इसको जब आपने प्लेनर स्ट्रक्चर में लिखोगे इसको, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। देखो ये वाला आपके पास पीछे वाला है, ये वाला आपके पास सामने वाला है। यू देखो ये वाला हाइड्रोजन मिथाइल देयर ऑन द सेम साइड, दिस मिथाइल एंड दिस हाइड्रोजन देयर ऑन द सेम साइड, एंड यू आर गेटिंग ए ट्रांस प्रोडक्ट। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इस डीबी यहां से सिन एलिमिनेशन करोगे, ये HBr निकलेगा, इसमें से HBr निकलेगा तो इमीडिएटली आपके पास उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ओके, तो देखो ये वाला आपके पास नीचे वाला इट विल रिमेन द फिक्स, मिथाइल और हाइड्रोजन इसको कुछ नहीं होता। ये वाला आपके ड्यूटेरियम थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए जब आप इसको स्ट्रक्चर को लिखोगे तो यू विल गेट, देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आपके पास डी और मिथाइल है, आपने डबल बॉन्ड डाल दिया, इसमें आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन है, ये वाला आपके आप यू आर गेटिंग ट्रांस, लेकिन दिस ट्रांस इज योर ड्यूटेरेटिव। अब देखो ये इन दोनों ट्रांस में क्या फर्क है, इस ट्रांस में हाइड्रोजन है, इस ट्रांस में ड्यूटेरियम है। देन यू विल जस्ट टेक दी HBr में देख लो, अब इसमें आपके पास व्हेन द एंटाइल से रिएक्शन होगी आपके पास, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट व्हिच इज ड्यूटेरेटिव। इफ ये वाला अगर आपके पास सिन से होगी, अगेन यू विल गेट ए प्रोडक्ट व्हिच इज आपके पास सिस मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आप इसमें देखो कि आपके पास दो केस में सिस मिल रहा है, दो केस में ट्रांस बन रहा है, और जिसमें से एक सिस में ड्यूटेरियम है और एक में ट्रांस में ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन दी कॉन्फर्मेशन, हम इसको जस्ट एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने इस रिएक्शन को किया, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इज, एक्सपेरिमेंटली उनको मिला जो प्रोडक्ट्स मिले थे, दे वर ट्रांस 2 ब्यूटीन, एक 1 मिला था उनको, एंड द ड्यूटेरेटेड सिस 2 ब्यूटीन, एक ये मिला था उनको, ये और ये दो जो मैंने टिक किया, ये दो प्रोडक्ट मिले थे, ये दो प्रोडक्ट उनको नहीं मिले। तो विच टेल्स यू कि आपके पास जो रिएक्शन है वो एंटाइल एलिमिनेशन होगी। ठीक है, अगर आपके सिन एलिमिनेशन होती फिर आपके पास ये वाले प्रोडक्ट मिलते, आपको ड्यूटेरियम की सिग्निफिकेंस पता चली। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन हो रही है, और एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप है, दे हैव टू बी ऑन द अपोजिट साइड, दे हैव टू बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर, तभी आपके पास 180 डिग्री एंगल उनके बीच होगा, डायहेड्रल एंगल होगा, तभी उनकी रिएक्शन होगी। अब आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे वो तो हमने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बता दिया। ठीक है, सेम थिंग यू कैन जस्ट थिंक व्हेन यू जस्ट राइट दिस हॉर्स में भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कि अब आप इसमें देखो कि अब इसमें क्या, अब इसमें आपके पास एंटी एलिमिनेशन तभी होगी जब आपके पास प्रोटॉन और एक्स जो है व्हेन दे विल अडॉप्ट एंटी कॉन्फर्मेशन ओनली, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास इस वाली पोजीशन पे देयर आर 2 ग्रुप्स, 2 HA है, मतलब अब हमने HA और HB को जस्ट डिस्टिंग्विश के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है कि आपके पास ये वाला है, आप इस बॉन्ड को वैसे फिक्स रखो, रोटेट करो, आपके पास ये H ये यहाँ चला जाएगा, R यहाँ पे जाएगा, HB यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास इस तरीके का मिल जाएगा। मीन यू हैव 2 कन्फर्मेशंस whereby your X and HB they are anti to each other, तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक बॉन्ड है बीच में, और देन दीस टू आर ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो इसके जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यू विल जस्ट सी कि द मोमेंट दिस एलिमिनेशन विल अकर, ये आर दे आर ऑन द अपोजिट साइड, यू विल गेट द ट्रांस प्रोडक्ट, whereas in this case when this reaction occurs these two are on the same side, you will get the cis product. Now since this is R, let us try to see कि क्या है R ये। ठीक है, देखो जब आपके पास R छोटा ग्रुप था, when this R was methyl, ठीक है, जब R आपके पास मिथाइल था, जब दोनों ही आपके पास मिथाइल थे, उस वक्त क्या हुआ आपके पास जो ट्रांस प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट आपके पास मिला, मतलब 6:1 रेशियो थी इन दोनों की। ठीक है, यानी मतलब ट्रांस वाज ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग, और 6:1 रेशियो, 6 आपके पास मतलब पार्ट्स मिले आपके पास इसके, और 1 पार्ट आपको मिला इसका सिस का। लेकिन जब ये अब देखो, अब ये नहीं, अब आपके पास कॉन्फर्मेशन ये भी अडॉप्ट हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन इन दोनों में से ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन रहा है। क्यों? कैन यू जस्ट थिंक, क्योंकि आपके पास ये जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे जो आर और आर है, इस वाली कॉन्फर्मेशन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, and out of these two the equilibrium will exist more in this conformation। क्यों? क्योंकि इसमें इनके पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। अब आप समझे, जैसे आपके पास ये वाले मान लो कि 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है आपके पास। ठीक है, अब ये वाला आपके ये 2 ग्रुप है, अब ये वाले आपस में फॉर एग्जांपल एक है कि अब ये इस तरीके से दे जाएंगे, these two groups they are away from each other। ठीक है, एक तो ये, दूसरा है क्या कि अगर आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल इफ दे अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ एंड देन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर।
तो अब आप इसमें देखो, क्योंकि ये आपके पास ये ग्रुप है, अब मिथाइल ग्रुप का जो एक साइज है इज ए पर्टिकुलर साइज। अब इसमें भी अगर आप देखो कि ये मिथाइल का छोटे ग्रुप की वजह से भी आपके पास ट्रांस ज्यादा बन रहा है, सिस कम बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर मान लो कि जैसे आपने इसको रोटेट किया, एंड दिस इज अनदर कॉन्फर्मेशन जो इसने अडॉप्ट करी है, जब इसमें से एलिमिनेशन होगी आपके पास, ये वाला आपके पास यू आर गेटिंग ओनली वन, ये अगर 6 पार्ट्स मिल रहे हैं, ये 1 पार्ट मिल रहा है। जस्ट थिंक जब आपके पास ये ग्रुप फिनाइल हो जाएगा, मान लो कि ये ग्रुप आपके पास है, इसके बदले में फिनाइल, फिनाइल इज बल्कियर देन योर मिथाइल ग्रुप। फिनाइल आपके पास देखो ऐसे फिनाइल प्लेन में हो जाएगा, लेकिन जैसे उसकी वो मूव करेगा, वो कितनी ज्यादा जगह लेगा वो, तो इसलिए जो फिनाइल का जो बल्क है वो मिथाइल से ज्यादा है। तो इसलिए आप जब उसको देखोगे, मिथाइल वाले ग्रुप को देख, फिनाइल वाले को देखो, अब आपके पास जो ट्रांस है वो आपके पास 100 टाइम्स मिल रहा है, और जो सिस है वो आपके पास ओनली 1 टाइम मिल रहा है। द रेशियो इज 100:1, यानी आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है दोनों केसेस में ट्रांस है, लेकिन जैसे आपका बल्क बढ़ गया, वो वाला ग्रुप आप जो ट्रांस प्रोडक्ट आपके पास लिटरली डोमिनेटिंग दिस सिनेरियो। आपके पास देखो, अगर आपके पास इसमें कितना था आपके पास, ये मतलब इसकी आगे रेशियो निकालो कितनी निकलेगी 6:1 में। 7:14। ठीक है, यानी अगर आप इसमें देखो कि आपके पास क्लोज टू ये वाला जो आपके पास है, ये जो आपके पास जो ट्रांस प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट आपके पास ऑलमोस्ट 85 to 90% बन रहा है इस वाले केस में। इस वाले केस में इट इज बिकमिंग 99.999% मिल रहा है आपके पास, जैसे आपके पास फिनाइल लग गया। वाई? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक। देखो जैसे आपके पास ये ग्रुप बड़ा हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे मैं इसकी अगर सब्स्टिट्यूशन बड़ी कर दूं, यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन को मैं अगर बड़ा कर दूं, अब देखो जैसे ये बड़ा होगा, इनकी कोशिश होगी ये एक दूसरे से उतना दूर रहे। क्यों? क्योंकि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम हो गई। अगर यहाँ पे आएंगे तब भी स्टिल दे वुड बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इफ दे आर एंटाइड टू ईच अदर इन दिस कन्फर्मेशन। ये वाले कन्फर्मेशन में दे विल बी, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतनी ज्यादा ये दो रहना पसंद करेंगे। तो आपके पास इस तरीके से यू कैन जस्ट ट्राई द सेम थिंग बाय ड्राइंग द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आल्सो। न्यूमैन से भी आप ट्राई कर सकते हो इस वाले केस में। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपके पास जैसे ये एक एग्जांपल है सिन वाले की, सिन एलिमिनेशन की। अब सिन एलिमिनेशन में क्या है आपके पास, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला आपके पास ग्रुप जो है, और आपको पता है जब आपके पास ओनियम ग्रुप होते हैं, जो है पोअर लिविंग ग्रुप, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस, और देन इफ यू हैव poorly dissociating solvents, they are all these factors they favor the syn elimination। इसको आपने वो उसमें इसको आपने थोड़ा सा वो पढ़ लिया होगा उसमें। ठीक है, तो इसको जब देखो कि अब इस वाले केस में आपके पास क्या, कि जैसे ये वाला आपके पास मॉलिक्यूल है, दिस इज रिटर्निंग टू कन्फर्मेशन, एक ये वाला है, उन्होंने इसको रोटेट करके ऐसे किया ताकि ये वाला वो ये आपस में दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर, ये हाइड्रोजन और ये वाला, दिस इज फॉर सिन, दिस इज फॉर एंटाइन। जब उन्हें इसकी रिएक्शन करी तो आपके पास वो निकल गया, डबल बॉन्ड जहां पे आ गया आपके पास, यू कैन जस्ट सी कि आपके पास R1 एंड ड्यूटेरियम दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स। इस वाले केस में आपके पास R2 एंड ड्यूटेरियम दे आर, सिन वाले केस में आपके पास दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। तो क्योंकि हमने R1 R2 लिखा हुआ है, यू प्लीज जस्ट सी R1 R2 व्हेन योर R1 इज फिनाइल एंड R2 इज आइसोप्रोपाइल, एक फिनाइल और ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, तो अब देखो फिनाइल और आइसोप्रोपाइल में, आप देखो फिनाइल और आइसोप्रोपाइल में आपके पास जो सिन वाला प्रोडक्ट है वो आपके पास 68% बन रहा है, 32% आपके पास ट्रांस बन रहा है, ये वाला बन रहा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास देखो कि अगर आपके पास ये मिथाइल हो जाए, देखो आइसोप्रोपाइल से मिथाइल आपके पास थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो उस वाले केस में आपके पास सिन प्रोडक्ट जो है ये कम हो गया होगा। ठीक है, सिन प्रोडक्ट कम होगा, लेकिन जैसे अगर आपने मान लो कि देखो उसका आपने इसको छोटा किया, इसको बड़ा कर दिया, मतलब आपने एक सब्स्टिट्यूशन उसमें कर, अब देखो आपके पास सिन प्रोडक्ट क्या और कम हो गया। तो इसका मतलब अब आपके पास जो है स्टीरिक जो आपके पास जो बल्क है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपकी कौन सी कन्फर्मेशन अटेन होगी, और उसके बाद जो है आपकी वो जो रिएक्शन जो है उसको उसमें उसको होना है। यानी आपके पास देखो कि अगर आपकी इस रिएक्शन में अगर आपके पास एंटी एलिमिनेशन हुई तो ये बनेगा, सिन होगी तो ये मिलेगा। तो क्योंकि इस दिस जो सबस्ट्रेट है, दिस इज फिट फॉर द सिन एलिमिनेशन। तो लेकिन यू जस्ट सी बाय चेंजिंग द सब्स्टिट्यूशन यू कैन सी कि आपके पास सिन एलिमिनेट जो सिन एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो आपकी इसमें लगातार कम हो जाएगी। तो ये आपके पास नो इट इज क्रिस्टल क्लियर कि जो आपके पास जो कन्फर्मेशन है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्टिविटी इन द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी डिड फॉर दिस थिंग। अब आप इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा।
ओके, अब इसमें देखो कि आप इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जैसे आपके पास आपने ओलिफिन ली है, ठीक है, अब यू जस्ट, अब हमने इसमें ब्रोमीन की एडिशन करी है। ब्रोमीन की एडिशन जब करेंगे तो आई एम सेइंग ब्रोमीन इज गेटिंग फ्रॉम द टॉप। अब आप ये देखो कि जैसे ये वाला आपके पास, ये वाला डबल बॉन्ड है आपके पास, तो बेसिक नो दिस डबल बॉन्ड इज योर sp3 प्लेनर मॉलिक्यूल है। जैसे इसमें आपके पास ब्रोमीन की एडिशन होगी, दिस विल बिकम योर, दिस दे विल बिकम टेट्राहेड्रल, ये बन जाएगा। तो आपके पास जो है दे इट बिकम इट फ्रॉम प्लेनर स्ट्रक्चर इट विल बिकम ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसलिए जैसे हमने देखो, एंड इट इज वेरी सिंपल, हमने इसको बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में लिखा कि जब आपके पास ब्रोमीन ऊपर से चलेगी, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आपके इनसाइड चलेंगे। जैसे देखो ये बोला, ये हाइड्रोजन, ये आपने डॉटेड लिखा हुआ है, नीचे भी डॉटेड लिखा हुआ है, ब्रोमीन आपके पास यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन आपके पास बन गया है, ठीक है। दिस इज वेरी एस्टेब्लिश्ड रिएक्शन। उसके बाद आपके पास क्या है कि जो Br माइनस निकलता है, इट कैन अटैक एट दिस प्लेस। जैसे आपको इसको खोलने के लिए क्योंकि बैक साइड पे अटैक करना है, अगर आपके पास ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बना होगा है, Br will come and it will attack from the back side. So it has two possibilities. Either it can attack from this side or it can attack from this side. तो when it, जैसे हमने इस पाथवे को एक को लिखा हुआ है, when it attacks from this side, अब you please देखो, नोट करना, क्योंकि ये आपके पास बैक साइड अटैक है, यहाँ पे आपके पास वाल्डन इन्वर्शन हो रही है। देखो जब यहां से अटैक होगा आपके पास क्या होगा, Br आपका पीछे से आ रहा है, डॉटेड आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये Br, दिस Br जो बॉन्ड टूट रहा है ये ठीक है, इसमें जो इनकमिंग Br होगा वो आपके पास डॉटेड होगा। ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं ये आपके पास सामने आ जाएंगे, तो दे विल बिकम योर, ये ठीक हो जाएंगे आपके पास। ओके, और जब आप ये Br खोलेगा, ये Br तो आपको वैसे ही देगा, इसमें तो ये दोनों ठीक रहेंगे, Br आपका डॉटेड। ये समझाइए आप लोगों को ये स्टेप, अभी बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ गया, समझो आपको सब कुछ समझ आ गया। देखो अब आपके पास क्या कि एक ब्रोमोनियम आयन आपके पास बन रहा है, ठीक है, एक just see. Charging is going down, but anyway, let me see if I can just explain this thing to you. तो आप इसमें देखो कि आपने जस्ट इमेजिन करना है, देखो आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी हुई है, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन आपका बना हुआ है, तो आपका अटैक इस साइड से होता है, व्हेन द अटैक इज दिस साइड। अब देखो अगर आपके पास ये वाला थिक है, आपका बैक साइड से अटैक हो रहा है, Br आपका डॉटेड हो जाएगा। व्हेन दिस Br इज डॉटेड, ये वाले दो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो पहले ऐसे थे, ये एकदम हो जाएंगे आपके पास, ये देखो आपके पास यहाँ पे थिक हो गई, और ये वाला Br व्हेन इट ओपन्स अप, व्हेन दिस रिंग ओपन्स, दिस Br इज डॉटेड, then this Br is thick, ये जो यहाँ ये इसका बॉन्ड ये टूट होकर थिक किया, ये दोनों आपके पास बॉन्ड है। क्योंकि जब हमें इसको फिशर प्रोजेक्शन में डालना है, फिशर प्रोजेक्शन हमने क्या, हमने ऊपर वाले बॉन्ड को रोटेट कर लिया, रोटेट किया, मेरे पास क्या आ गया, H इस साइड चला गया, और ये वाला, एंड देन दे हैव बिकम थिक। क्योंकि हमें फिशर प्रोजेक्शन के लिए क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स दे शुड बी अवे फ्रॉम यू, वर्टिकल ग्रुप्स दे शुड बी अवे, और हॉरिजॉन्टल दे शुड बी टुवर्ड्स अस, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। सिमिलरली अगर हम इसको इस साइड से अटैक होगा, व्हेन द अटैक विल अकर फ्रॉम द टॉप साइड, इसको हमने पाथवे बी लिखा हुआ, बी से अटैक होगा। अब देखो जब जहां पे से अटैक होगा, Br डॉटेड हो गए, ये दोनों थिक हो गए होंगे, और नीचे वाले बॉन्ड में आपके पास उस तरीके से जैसे पहले ऊपर वाला केस था। तो जब आपने इसकी रोटेशन करी, सो इट दे हैव आल्सो बिकम, कि आपके पास ये देखो, यू प्लीज नोटिस कि आपके पास जब ये वाला जब रोटेशन करके H इस तरफ आ गया, COH आपका इस तरफ चला गया, ठीक है, एंड देन दे हैव बिकम थिक ऑन द वे, ये आपके पास ये Br आपके पास डॉटेड हो गया। जब आपने इसको फिशर लिखा, आपके पास ये बन गया, देखो Br ये आपके पास हो गया। इस तरीके से जब आपने इसका फिशर लिखो, आपके पास ये वाला हो जाएगा। इट मींस सो दीज टू दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी आपके पास
you will get a racemic product. आपके पास ये प्रोडक्ट जो है, आपके पास जो मटेरियल है वो कायरल बनेगा, लेकिन दैट दिस मटेरियल विल बी जो रेसमिक. क्यों? क्योंकि आपके पास एक साइड अटैक करने से आपके पास, मान लो कि अगर ये वाला आपके पास प्लस है, ये वाला माइनस है, बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. एक ने प्लस होना है, रोटेशन की प्लस होगी, एक की माइनस होगी. सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं, इस वाले केस में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलेगा. विल गेट द रेसमिक प्रोडक्ट. ओके, जो प्लीज जस्ट, अगर आपने इस वाले पहले वाले को अच्छे तरीके से समझ लोगे, पहले पेज को समझो कि आपको पूरी केमिस्ट्री, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी. ठीक है, मैंने बोला केयरफुली एनालाइज द पॉइंट ऑफ द अटैक करो, उसके बाद उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो कैसे कैसे चेंज हो रही है, रोटेशन के बाद क्या हो रहा है. ठीक, तो द सेम वुड बी द केस अगर आपने, जैसे ब्रोमीन हमने यहाँ करी, आपने ब्रोमीन को बैक साइड से करो. जब ब्रोमीन बैक साइड से अटैक करेगी, ये वाले आपके पास दोनों जो है, जैसे मैंने आगे किया हुआ है, जैसे इस वाले केस में हमने क्या किया, हमने बैक साइड से अटैक किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसलेशन है. व्हेन ब्रोमीन एड्स द ट्रांसलेशन अकर्स, जब आपके पास MnO4 उसमें ऐड करता है डबल बॉन्ड पे, आपके पास सिस एडिशन होती है. ये सिस आपके पास ऐड हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आपने, बिकॉज इट विल जस्ट ऐड फ्रॉम द सेम साइड. अब देखो, जब इसने नीचे से ऐड किया, इस वाले ने, फॉर एग्जांपल व्हेन विल जस्ट आपके जब इसने इस बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये वाले ग्रुप्स जो है ये सामने आ जाएंगे, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, बिकॉज दिस कार्बन इज गोइंग टू बिकम टेट्राहेड्रल. तो ये वाले जैसे ये डॉटेड है, ये वाले दोनों आपके पास चढ़ के सामने आ जाएंगे. दिस दे हैव कम आउटसाइड. जब आपने इस कॉम्प्लेक्स को लीव करोगे, तो यू विल गेट दिस मटेरियल, ये वाला आपके पास मिल जाएगा. OH आप देखो, इसमें रोटेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स दे आर टुवर्ड्स यू, वर्टिकल ग्रुप दे आर अवे फ्रॉम यू. तो ये आपके पास ये वाला. इसी तरीके से क्या है कि अगर आपने पीछे वाले से अटैक होएगा आपके पास, मान लो कि अगर आप करोगे सेम थिंग यू विल गेट. इस वाले केस में आपके पास यू आर गेटिंग मेसो प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग मेसो. इट मींस कि अगर आपके पास सिस स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे ये वाला केस है, और अगर आपके पास एडिशन सिस हो रही है इसमें, जैसे इसमें एडिशन क्या है, हमारे पास सिस है, सो यू विल गेट ए मेसो प्रोडक्ट. ठीक है, इस दिस इन्होंने सीसीएम. If it is cis and the addition is cis, then you will get a meso product. This is your CAR, CAR. तो इसमें क्या कि अगर आपके पास अगर ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल सिस, उसमें एडिशन जो है वो एंटाई हो रही है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रेसमिक बन रहा है. वो एक याद रखने के लिए निमोनिक है, लेकिन मतलब यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली. सेम इज द केस इस वाले केस में. देखो, मान लो कि वहां पे पहले हमने लिया था सिस, यहाँ पे हम ट्रांस लेके कर लिया. अब आप देखो सेम स्टेप, जैसे हमने पहले टॉप पे एडिशन हुई, हमारे पास ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बना, इसने बैक साइड से अटैक करेगा, उसके बाद हमने बॉन्ड की रोटेशन करेंगे, एंड देन दिस इज अल्टीमेट व्हिच वी विल गेट इट. इस वाले केस में जब ऊपर से करेगा, ये वाला मिलेगा, और इन दोनों में आपस में क्या है, यू विल फाइंड इट, इसमें ही देयर इज ए इंटरनल आपके पास सिमेट्री है मॉलिक्यूल की, एंड देन दिस विल बी योर मेसो प्रोडक्ट. सेम इज द केस अगर आपके पास ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये वाला अगर आपके पास वो मतलब इसमें दिस इज योर ट्रांसलेशन. अब देखो, हम दो केस पढ़ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड पे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक हमने सिस एडिशन कर रहे हैं. और डबल बॉन्ड हम, एक आपके पास डबल बॉन्ड या तो सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है. हमने पहले सिस पे किया, अभी हम जो ट्रांस पे कर रहे हैं. ट्रांस वाले केस में आप देखो, जब बैक साइड से अटैक होगा, यू विल गेट दिस थिंग, ओपन करोगे ये वाला बनेगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, जब आप इसको करो ये वाला बनेगा. तो इसी तरीके से जब आपके पास, क्योंकि इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने जब देखो, एक जब हमने बैक से अटैक कराया, इन दोनों का हमने क्या किया, ये ठीक हो गए. जब हमने इसको फ्रंट से अटैक कराया, देखो जब हमने इसको सामने से अटैक कराया, ये आपके पास क्या हो गए, these two have they have become dotted. तो जब आपने इसको खोलोगे, फिर आपने इसको रोटेट करना है, इसको आपने 100, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 एरो लिखे हुए हैं. यू हैव टू डू रोटेशन, फिर आपके पास फिशर प्रोजेक्शन में आप इसको लिख पाओगे, एंड देन यू विल जस्ट फाइंड कि दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड आपके पास रेसमिक प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो इसका आइडिया क्या है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है, ठीक है, अगर उसमें ट्रांस एडिशन होती है, आपको मेसो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ब्रोमीन की एडिशन है. अगर सिस एडिशन होती है, आपको रेसमिक मिलेगा, एंड दिस इज रिवर्स फ्रॉम योर सिस वन. सिस वाले केस में आपके पास ट्रांस में रेसमिक मिलता था, उसमें आपके पास ट्रांसलेशन में मेसो मिलता है, इसमें सिस में आपके पास रेसमिक मिलता है. तो यू कैन जस्ट सी दिस बैटरी इज आल्सो सेइंग इट इज गोइंग. सो आई एम जस्ट डन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू प्लीज लेट मी नो.